بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں سلطنت عثمانیہ، دولت عثمانیہ کی اس سلسلے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی خانہ بدوش ریاست نے کیسے 3 بر اعظم پر حکومت قائم کی تھی؟ ایک قبیلہ تھا، چند سو سپاہی تھے اس کے، اور ایک خواب تھا ان کا جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلایا تھا۔ یہ کہانی ہے تلوار کی، حکمت کی، اور اس عزم کی جس نے قسطنطنیہ کی دیواروں تک گرا دی تھی۔ لیکن سوال یہاں پہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ سلطنت صرف طاقت سے بنی تھی یا اس کے پیچھے کوئی نظریہ تھا، کوئی ایمان تھا، کوئی حکمت عملی تھی؟ آج ہم اس کی تاریخ اسلام کی دولت عثمانیہ کی 35 نمبر قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ سفر ہم نے شروع کیا ہوا ہے جو ہمیں لے جائے گا ارطغرل سے سلیمان اعظم تک۔ لیکن اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند سال ہمیں پیچھے جانا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں اس قسط میں کہ سلیم کی تخت نشینی کے ساتھ ہی سلطنت کا زوال نمایاں ہونے لگا تھا۔ جو سلطنت 300 برس کی تدریجی ترقی کے بعد سلیمان اعظم کے زمانہ میں آپ نے کمال عروج تک پہنچی تھی، اس میں دفتن انحطاط کا نمودار ہو جانا ممکن نہ تھا۔ سلیمان کی وفات کے بعد بھی تمام ملکی اور فوجی انتظامات چند سالوں تک استحکام کے ساتھ بدستور قائم رہے تھے، اور متعدد وزراء اور عہدہ داران سلطنت جو سلیمان اعظم کی تربیت یافتہ تھے بدستور سلطنت کی خدمت کرتے رہے، اور جب تک یہ وزراء ملکی اور فوجی احکام زندہ رہے سلطنت کا زوال ظاہر نہ ہو سکا، بلکہ تقریباً 12 سال تک حدود سلطنت میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ عہد آخر کے ان وزراء میں محمد سوکل علی یہ سلطنت کا حقیقی فرما روا وہ تھا۔ محمد سوکل علی کی پیش نظر 2 اہم تجویزیں تھیں۔ وہ خاکنائے سوئز میں ایک نہر کھود کر بحر احمر اور بحر ہند کو ملا دینا چاہتا تھا تاکہ ترکی بیڑا ان دونوں سمندروں میں آسانی کے ساتھ داخل ہو سکے۔ دوسری تجویز دریائے ڈان اور دریائے والگا کو ایک نہر کے ذریعے سے ملا دینے کی تھی۔ یہ دونوں دریا روس سے نکل کر دور تک متوازی خطوط میں بہتے جاتے تھے اور ایک مقام پر ایک دوسرے سے اس قدر قریب ہو جاتے تھے کہ درمیانی فاصلے صرف 30 میل رہ جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ایک بحراز میں جا کر شامل ہو جاتا ہے اور دوسرا بحر کاسپین میں۔ ان دریاؤں کو ایک نہر کے ذریعے سے اس مقام پر ملا دینے سے جہاں درمیانی فاصلہ صرف 30 میل رہ جاتا ہے، ترکی جہازوں کے لیے دریائے ڈان اور دریائے والگا سے گزر کر بحر کاسپین میں پہنچ جانا اور وہاں سے صوبہ تبریز پر حملہ آور ہونا جو سلطنت ایران کا مقبوضہ تھا بہت آسان ہو جاتا۔ علاوہ بریں اس تجویز کی کامیابی سے تجارتی فائدے بھی بہت حاصل ہو سکتے تھے، لیکن اس مقصد کو پورا ہونا اسی وقت ممکن تھا جب استراخان پر قبضہ کر لیا جاتا۔ یہ شہر مملکت روس کے قبضہ میں تھا جس کی وسعت اور قوت چند سالوں سے برابر ترقی ہی کر رہی تھی۔ سن 1568 عیسوی میں سوکل علی نے 25,000 ینیچری اور سپاہی کو ازف روانہ کیا۔ وہاں کریمیا کے 30,000 تاتاری بھی ان کے ساتھ ہو گئے اور یہ متحدہ فوج استراخان پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھی جو دریائے والگا کے دہانہ پر واقع تھا۔ یہاں پہلی بار روسیوں اور ترکوں کا مقابلہ ہوا۔ ترکی فوج استراخان پر قبضہ نہ کر سکی اور تاتاریوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ عثمانی فوجیں مجبوراً ازف کی طرف واپس ہوئیں، لیکن قسطنطنیہ پہنچنے سے پہلے ان کا بیشتر حصہ بحر اسود میں ایک طوفان سے ضائع ہو گیا اور صرف 7,000 سپاہی بخریت
वापस अपने मंजिल पर पहुंच सके। इस नाकामी का नतीजा ये हुआ कि डान और वाल्गा को मिला देने की तजवीज मनसूख कर दी गई। रूस में अभी इतनी कुव्वत ना थी कि वो खुद सुल्तनत उस्मानिया पर हमला आवर होता। जार आवान ने 1570 ईस्वी में अपने एक सफीर बाब आली में भेजा और इस्तारखान के हमला की शिकायत की। नीज दोनों सुल्तनतों के दरमियान अमन और मुआहदा कायम करने की ख्वाहिश जाहिर की गई। चुनाचे एक सुलहनामा मुरतब किया गया। तकरीबन एक सदी तक रूस और सुल्तनत उस्मानिया में फिर कोई जंग नहीं हुई। खाकनाए सुएज की तजवीज भी एक नामालूम मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई थी, क्योंकि यमन में बगावत छिड़ गई थी और सनान पाशा की सरगर्दी में एक फौज वहां रवाना करनी पड़ी थी। सनान पाशा इस बगावत को फॉलो करने में नाकामयाब हुआ और यमन और अरब के दूसरे हिस्से मुस्तकिल तौर पर सुल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिए गए थे। यमन की दोबारा फतह के बाद सोकोल अली ने ट्यूनिस को स्पेनियों के पंजा से छुड़ाने के लिए 1569 ईस्वी में ओलज पाशा को अलजायर का हाकम बनाकर इसकी सरकर्दगी में एक तुर्की बेड़ा रवाना किया। ओलज पाशा ने स्पेनियों को शिकस्त देकर शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन स्पेनी फौज किलों में मशहूर होगी और 1574 तक इस पर काबिज रही। फिर 1570 में सलीम ने कब्रस पर हमला करने का कसद किया। ये जजीरा जमहूरिया वेनस का मकबूजा था, जो सुल्तनत उस्मानी के हलीफ थे। सोकोल अली ने इस तजवीज की मुखालफत की, लेकिन करा मुस्तफा पाशा के असरार और खुद सलीम की ख्वाहिश ने इसकी मुखालफत को बाय असर रखा और एक हलीफ के मकबूजा पर हमला करने के लिए मुफ्ती आजम ने इल्लत और जवाज पेश की कि कब्रस इससे कबल एक इस्लामी हुकूमत मिस्र के जेर नगी रह चुका है। चुनाचे 1570 में मुस्तफा पाशा ने 1 लाख फौज के साथ कब्रस पर चढ़ाई की। 7 हफ्ता के मुआसरा के बाद इसका पाया तख्त नाइकोसिया फतह हो गया था। फिर मुस्तफा पाशा ने इस जजीरा के सबसे मजबूत किला फामागोस्ता का भी मुआसरा किया और इस तवील मुद्दत के बाद अगस्त 1571 में ईस्वी में मासूरीन ने हथियार डाल दिए थे। किला की सुपुर्दगी के वक्त मुस्तफा पाशा ने कब्रस की सिपहसालार बरागाडिनो के सामने नहायत नरम शराइत पेश की है। इसने ईसाई फौज और वहां के ईसाई बाशिंदों की जान और माल और मजहब की हिफाजत का जिम्मा लिया और वादा किया कि ये फौज तुर्की जहाजों पर जजीरा क्रेट पहुंचा दी जाएगी और वहां आजाद कर दी जाएगी। लेकिन ऐन इसी वक्त के ये जहाज रवा की तैयारी कर रहे थे। मुस्तफा पाशा और बगंडों में बाज विशिष्टा वाकयात के मुतल्लिक तकरार होगी और ये बात यहाँ तक बढ़ी कि मुस्तफा पाशा ने गुस्से में आकर तमाम ईसाई फौज के कत्ल का हुक्म दे दिया और इसके 1 हफ्ता के बाद बरगंडों की जिंदा खाल निकलवा ली। फार्मागोस्ता पर कब्जा पा जाने के बाद तुर्कों ने पूरे जजीरा को फतह कर लिया था, लेकिन इस फतह में इनके तकरीबन 50,000 आदमी काम आए। 300 वर्ष तक कब्रस सुल्तनत उस्मानिया के जेर सल्तनत रहा। 1878 में बाब आली ने इसे गवर्नमेंट बरतानिया के हवाले कर दिया था। कब्रस के हमला से यूरोप के ईसाई सुल्तनतों में नहायत तशवीश पैदा हुई और यूरोप ने तुर्कों के बहरी ताकत का सद्देबाब करने के लिए बहरा रूम के ईसाई हुकूमतों का एक इत्तेहाद कायम किया, जिसके खास अरकान स्पेन, वीनस और मुबारजीन माल्टा थे और इस मुतहदा बहरी बेड़े का सलार आजम डॉन जॉन को मुकर्रर किया गया, जो शहंशाह चार्ल्स पंजम का नाजायज लड़का और बावजूद अपनी नौमरी के इस अहद का नहायत मुमताज कमांडर था। इत्तेहादी बेड़ा सितंबर 1571 ईस्वी को मेसिनिया में जमा हुआ, लेकिन कब्रस से उस वक्त तक फतह हो चुका था। तुर्की बेड़ा जो अपने जहाजों की कसरत तादाद में ईसाई बेड़े से बड़ा हुआ था, खलीज लेपोंटा में लंगरदाज हुआ। अमीर अल बहर अली पाशा एक नौमर सरदार था। इसको बहरी जंग का ज्यादा तजर्बा न था। ओलोज पाशा, जिसकी उम्र के 43 साल बहरी जंगों में सर्व हो चुके थे, इस बेड़े का नायब अमीर था। इसने इत्तेहादियों पर फौरन हमला करने से इस बुना पर इख्तलाफ किया कि तैयारी जैसी चाहिए अभी मुकम्मल ना हो सकी।
लेकिन अली पाशा को बिला तौक़ुफ़ हमला कर देने पर इसरार था। बलोच पाशा को खामोश हो जाना पड़ा। 17 अक्टूबर 1571 को खलीज लेपोंटो के दहाना के करीब दोनों बेड़ों का मुकाबला हो। जंग सिर्फ चंद घंटों तक ही कायम रही, लेकिन मगर फरीकीन को शिद्दत नुकसान बर्दाश्त करने पड़े। दोनों बेड़े एक दूसरे से इस कदर करीब आ गए थे कि तलवार की लड़ाई होने लगी, जिसमें अमीर अल बहर अली पाशा मारा गया। असाइयों ने इसका सर काटकर जहाज के मस्तोल पर लटका दिया था। ये देखकर तुर्कों के कदम उखड़ गए थे और अलोज पाशा की कोशिश के बावजूद इन्हें बुरी तरह शिकस्त हुई। अलोज पाशा बामुश्किल 40 जहाजों को लेकर सलामती के साथ वहां से निकल सका। बाकी पूरा तुर्की बेड़ा, जिसके जहाजों की तादाद 266 थी, ईसाइयों के कब्जे में आ गया। इनमें से कुछ गर्क भी कर दिए गए। इस जंग में 30,000 तुर्क काम आए और 15,000 ईसाई गुलाम आजाद हुए। ख्याल था कि इत्तेहादी फौज अपनी अजीम शान कामयाबी से फायदा उठाकर आगे कदम बढ़ाएंगी, लेकिन इस फतह से वो कुछ ऐसा मुतमिन हुए कि फौरन अपने मुल्क को रवाना हो गया और वहां पहुंचकर खुशियां मनाने लगे। बरखिलाफ इसके कि तुर्कों ने फौरन इस नुकसान की तलाफी शुरू कर दी। सलीम ने भी, जो अमूमन ऐश अशरत में सरशार रहता था, अपनी जेब खास से एक कसीर रकम अता की और अपने महल के एक बाग का एक हिस्सा नए जहाजों की तमीर के लिए दे दिया। चुनाचे 168 जहाजों की तमीर फौरन शुरू कर दी गई और चंद महीनों में हैरत अंगेज तौर पर यह नया बेड़ा तैयार हो गया था। 980 हिजरी 1572 ईस्वी में इत्तेहादी बेड़ा फिर बैर रूम के मशरकी हिस्सा में जमा हुआ। ओलोज पाशा अपने नए बेड़े के साथ इसके मुकाबले के लिए निकला, लेकिन चूंकि इसके जहाज रानों को हनूज काफी तजर्बा ना था, इसलिए इसने खुद हमला करना मुनासिब नहीं ख्याल किया और इत्तेहादियों को पेशकदमी का इंतजार करता रहा। इत्तेहादी तुर्कों के इस खिलाफ तुर्को तैयारी से बज़ाहिर इस कदर मारूफ हुए कि इनकी तरफ से कोई हमला ना हुआ और ओलोज पाशा अपने पूरे बेड़े के साथ वापस आ गया। 1573 ईस्वी में वीनस ने बाबे आली से सुलह की गुफ्तगू शुरू कर दी थी। इसमें मुआहदा मरतब हुआ। वीनस ने न सिर्फ कब्रस की फतह और इस पर सुल्तनत उस्मानिया का कब्जा तस्लीम कर लिया, बल्कि इसके हासिल करने में जो अखराजात दौलत आलिया को बर्दाश्त करने पड़े थे, जिनका तखमीना 3 लाख दुकात था, इनकी अदायगी भी मंजूर की। जजीरा ज़ानत के लिए जमहूरिया वीनस अब तक 500 दुकात खराज अदा करती थी। इस मुआहदा की रूह से खराज की मकदार 1,500 दुकात मुकर्रर होगी। अलबत्ता कब्रस का खराज जो 8,000 दुकात सालाना करता था, वो अब मौकूफ कर दिया गया। डालमाशिया और अल्बानिया में फरीकीन के जो मकबूजात जंग लेपोंटो से कबल थे, वही बरकरार रखे गए थे। वीनस और सुल्तनत उस्मानिया की सुलह के बाद डांड जान एक स्पेनी बेड़े के साथ ट्यूनिस पर हमला आवर हुआ और चूंकि किला पर स्पेन का कब्जा जारी था, इसलिए आसानी के साथ शहर को फतह कर लिया। इसने ट्यूनिस में एक जदीद किला तमीर कराया और स्पेनी सिपाहियों का एक ताकतवर दस्ता वहां छोड़कर खुद वापस चला गया। इस वाक़े की खबर जब कस्तूनिया पहुंची तो सदर आजम सोकोल अली ने ओलोज पाशा को एक जबरदस्त बेड़े के साथ रवाना किया। ओलोज पाशा ने स्पेनियों का कला कमा करके शहर का किला और ट्यूनिस के पूरे सूबे पर कब्जा कर लिया और इसे सुल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया गया। सन 1574 ईस्वी में सलीम का इंतकाल हो गया था। सुल्तान सलीम का इंतकाल हो गया था और सलीम के इंतकाल की खबर सुनकर इसका बड़ा लड़का मुराद, जो हुकूमत मगनेशिया पर मामूर था, 21 दिसंबर सन 1574 ईस्वी को कस्तूनिया पहुंचा और 28 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ। मोहम्मद फातह के कायम करदा दस्तूर के मुताबिक इसने ज़माम सुल्तनत को हाथ में लेते ही अपने 5 भाइयों को कत्ल कर दिया और इसके बाद सबसे पहला फरमान शराब की ममानत में सादर किया, जिसका रिवाज साबिक सुल्तान के अहद में बहुत ज्यादा हो गया था। तो दोस्तों, बहनों भाइयों, इसी के साथ आज हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे अगली किस्त लेकर।
اللہ حافظ.